Good morning, applikan sa Hornbill TV la Morning Pulse. 7th April Pimla murder case upor আজি জানি পাইছে কি প্রাইম সাসপেক্ট তো তাই লাগা হাজবেন্ড আছে পুলিশ পা চার্জশিট তো কোর্টে দিবলা আছে কইছে পেরেন্ট ডিস্ট্রিক্টে ইনডেফিনিট শাটডাউন দো অন হোলতে রাখি দিগিনা আছে আইবি ডিটেইলস হব রিপোর্টার আদোনা লগতে 7 April Pimla murder case laga oporte civil society organization Jelarong youth organization aro Jelarong students union Nagaland bra itu justice dibule state government aro enforcement agency kan ke itu demand krigna hala tu aji yate commissioner of police logo office te yate aigna ase aro takan aji commissioner of police logo meeting kurigna ekta latest update moan jani paise ki itu 7 April Pimla murder case laga main suspect prime suspect tuile taila muta ase khoigna moan itia jani pai ase aro takan khoise ki charge sheet hoile bi itia ready kurina khali itu tan charge sheet bi submit kurula ase koina moan itu cover pai ase itu la opor bi yate Jelarong youth organization Nagaland aro Jelarong students union kan bi meeting kurina ahala ase itu details takan CP logo kota kurigina ki commitment digina ase itu moan itia details salobo Once again, we thank our media fraternities. Well, Amikhan, just now we had a sitting with our Commissioner of Police. Before that, today we had a crucial meeting in our district, Peren. Aman tade called by our Deputy Commissioner. Amikhan aji meeting thagise, inclusive of all the civil societies at the DC conference hall. Aman tade meeting thagigene. Aman tade discuss kurise. In the meantime, aman laga. কি লাগা খবৰ অহা কাৰণে আমান সাম দে আমি খান লাগা ইদে কমিশনাৰ অফ পুলিচ লগতে আমান এতিয়া মিটিং বহি কিনে মিটিং বহা সময়তে we got a commitment that our commissioner of police ইটো Pimla murder case লাগাতে তাইখান চাৰ্জ শ্বীটটো তাইখান বানাই লৈছে ইটো লাগা হিচাপতে আছে আৰু now the Commissioner of Police has already, given his commitment that even by tomorrow they are ready to submit the charge sheet to the court. Koi gina tahan idia itula commitment di gina se. See, amikhan kuan is na kila mana amikhan na demand bi itu takise. Charge sheet tu tahan submit na kura karne amikhan bi itu amami strive kura laga se. Aro amikhan na demand du public domain de culprits kandu kung ase takhan na identity tu aman ke bi declare kuri dibi aman ke hand over kuri dibi kwa laga no hoy ali bi identity tu aman ke public domain de itu dikhai dibi kwa laga amana demand agise aro ami khana demand du aji du fulfill quran is na ase at one point kila mana charge sheet tu takhan ita tu ready hoi gina ase and they will be, I've already mentioned tahan charge sheet tu kali hoile bi tahan submit kuri dibo kwa karne ami khan agitation itu jabule laga tu as for now it is not complete call off. Will be as for now, Amikhan idu second phase of agitation will be Amikhan idia tu on hold the rakhi diase for public, for public understanding karne now will be public clearance karne aman itu itia karne tu aman itu rakhi diase. Aro ami itia koi development thakado kila mane since from day one idu Pimla murder case lagade aman itu pursue kurina aha homoide Amikhan agitation first phase laga agitation bi kurise first phase of agitation is a term of showing our resentment towards the state government for not taking serious enough on not only on this particular issue but there are some different issues especially in Nagaland itu laga issue tamde one after the another issue homoi de justice deliver nakura laga bc hoiza karne aman bi itu kura lase aro ami khan itu problem mun takadu aji aman itu fight kura lagadu not only for my Jelarong people but once again we are once again aman idia public bi kwa lagadu women's safety particularly aman itu aman state Nagaland maiki khan bi kinika tai khan bi safe kuri gine aman laga state bi boibla paribo itu lagade aman maiki khan la cause karne aman fight kura lagase aro agida man CP logo da boatam de CP par bi koi gina ase for latest updates media khan ke bi he's now time media khan ke bi itu briefing kurible laga tabi ready ase koi gine etia amkan CP par bi koi gina ase and when he's already ready I should say at least some
demands আমি খান লা demands খান তো এটা তো অলপ তো ফুলফিল কৰি না আহি আছে কই না আমান ইটো জানাই দি আছে In this case is yeah honestly speaking আমি খান ইতিয়া কৈ দিব main culprit ইতিয়া as per the report to তাই লাগা মতা আছে আমি খান ইটো সিধা কৈ দি আছে দেই কিলা মানে we don't want to hide any more else the more we hide it is creating more of confusion therefore এতিয়া তাহান prime suspect নহলে বি prime লাগা ইটো motive behind to তাই লাগা মতা আছে কৈ কিনে আমি খান ইতিয়া CP লগতে পৰা শুনিবলা পাৰিছে as per the report phase 2 laga continuation if you are not satisfied again, and how long will you wait? For this phase aman itu next step of agitation to aman idia koblen apare will it be if we are going to go ahead there will be another round of consultation with the civil societies of our district with the stakeholders because we represent the public not at our own itu karone aman ki kuri labi ki laga step aman jabo thakilebi aman public laga consultation bi lagbo aro ami khan laga elders khan ami khan la apex organization laga tai khan laga advice prabi ami khan jabo and on the last I would like to appeal to all the viewers and these our Naga brothers not only our Jilangrong community aman itu inika laga fight homoide giman tribe ami khan logoda aina ta khan solidarity ami khan logoda join kuri gine ami khan logoda join hands kuri dia ase we would like to thank every one of them though we cannot meet them personally will be ta khan laga support aro tai khan laga prayer support na will be ta khan laga advice pra ki laga ami khan itu agi jabole paria laga aman aji tak bi এতিয়া tak আমি এতিয়া fulfillment na will be aman iman tak step jabole paria laga tu it's all because of the efforts of our Naga community aman itu aman sob ke koi dia ase aro in the future days to come ki laga fight will be aman iki logode ami khan logode bi join kuri lobi aman laga mission to accomplish kuribla karne koi gina ami aro janai dia ase Last question. for forensic report laga tu itia ami kwa nisna etu sob na koile bi ami khan sob jani ase tai khan idu charge sheet to ready kuri dibo kwa tade sob to hoi jaise kila mane idu hoa karne charge sheet bi tahan bi idu ready hoi jaise itu laga te ase kila mane kwa nisna bar itu na koile bi charge sheet to ready hoise kole tade sob to ase koina bi aro janai dia ase তো এইটো আছে এইটো পিমলা মাৰ্ডাৰ কেছ লগা ওপৰতে এইটো লেটেষ্ট আপডেটটো আছে আৰু মই জানি পাইছে এইটো চাৰ্জশ্বিট তাকান ৰেডি আছে কালি ছাবমিট কৰিবলৈ আছে কৈ কিনা কমিটমেণ্ট পা পিছতে জেলাৰং ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন নাগালেণ্ড আৰু জেলাৰং ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন নাগালেণ্ড তাইকান যোৱা কালিৰ পৰা 10 জুন পৰা তাকান ইনডিফিনিট চাৰ্টাৰ ডাউন প্ৰেন ডিষ্ট্ৰিক্টে কৰি কিনা যাবলৈ লগাটো এতিয়া হল কৰি কিনা এম্বিয়েন্সতে ৰাখি কিনা আছে তো পাব্লিক প্ৰেন ডিষ্ট্ৰিক্ট পাব্লিক কাম বি জানি থাকিনা ইটো ইনডিফিনিট চাৰ্টাৰ ডাউন হোৱা লগাটো এতিয়া হলতে আছে ইটো নিমিতে খালি পৰা তো ইটো ইনডিফিনিট চাৰ্টাৰ ডাউন নকৰি কিনা যাব কৈ কিনা ইটো মই এতিয়া ক'ব পাই আছে তো লেটেষ্ট আপডেটটো হ'লে তাই লগা মোতা কিচুৱেট লুংলা লামাতা হে প্ৰাইম ছাছপেক্ট হৈ না তাই লগা ওপৰতে চাৰ্জশ্বিট লগাই কিনা আছে কৈ কিনা ইটো জানি পাই আছে ইটো লগা ওপৰতে বি মই লেটেষ্ট আপডেটছ আৰু ডেভেলপমেণ্ট পাইছে গ'লে আৰু আপডেট কৰিব আজি নিমিতে মানে আছে মই এডন উইথ কেমেৰা পাৰ্চন জনসন ফৰ্মবিল টিভি ডিমাপুৰ कर्नाटक बीजेपी प्रेसिडेंट BY विजयेंद्र ब्रा कर्नाटक लगा सिद्धरामಯ್ಯ गवर्नमेंट के अटैक कुरिसे बजरंग दल एक्टिविस्ट सुहास शेट्टी के मुराई दिया लगा हादसा दिब्रा ताइब्रा कर्नाटक दे थका कांग्रेस गवर्नमेंट के एंटी हिंदू माती से स्टेट ते होदाय हिंदू एक्टिविस्ट के अटैक कुरा निमिते मीडिया लोगों दे कोथा कुरा हुमय कुसे कि स्टेट ते कांग्रेस सरकार आहा पिछते हिंदू कार्यकर्ता खान ऊपर होदाय हमला होई थके इतुहे नोइगिना सुहास शेट्टी के मुराई दिया पिछते होम मिनिस्टर ताइला घोर जाबले थका भी सिद्धरामಯ್ಯ ब्रा जबरदस्त कैंसल करबो दिसे कोइगिना Last couple of years after Congress has come to power here in Karnataka, consistently Hindu Karyakartas has been attacked. BJP leaders has been targeted by Siddaramaya government. But due to the appeasement politics of Siddaramaya government, there is no action taken against any organization, SDPI or any organization or any anti-national elements, because Muslims will be upset. Because of the attitude of the state government, Siddaramaya government, Hindu Karyakartas are afraid, they are frightened about this government. In the recent Suhas Shetty murder case also, Home Minister was stopped visiting Suhas Shetty's house after the murder took place.
he was forced to cancel his visit. So this is the attitude which clearly shows this Siddaramaiah government is anti-Hindu. This Siddaramaiah government does not stoop to any level to threaten Hindu Karyakartas. Bharatiya Janata Party, we had met Honorable Governor. We demanded NIA investigation by National Investigation Agency, which state government did not accept. But fortunately, we are thankful to our Home Minister Amit Shah ji and our National President Nadda ji for accepting our demand and for referring the matter to NIA. So we welcome this move by the central government, and we are visiting Mangalore today to speak to our cadres, to Hindu Karyakartas, and also to seek their opinion about the entire episode. Regarding stampede, the state government is increasing the compensation 5 lakh to 25 lakh rupees. We had demanded at least 50 lakh compensation because this entire tragedy, the stampede incident at Chinnaswamy Stadium, was due to the state government's failure. See, increasing the compensation is one thing, but yesterday, what Siddaramaiah Chief Minister said is shocking and unfortunate. He said state government is not responsible for what incident happened at Chinnaswamy Stadium. Mr. Chief Minister, it is you who had tweeted and invited all the RCB fans for your victory celebration at Vidhan Sauda. When state government had organized victory celebration at Vidhan Sauda, how do you expect police to give security both at Chinnaswamy as well as Vidhan Sauda? And now you are distancing yourself from the responsibility. When that is the case, then why did you suspend 5 innocent police officers? Why did you suspend senior police officers? So Siddaramaiah's attitude clearly indicates he is trying to escape, especially after the High Court's observation. Siddaramaiah is trying to escape from the responsibility. He should not think that people are fooled. They will not accept whatever you are saying. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ब्रा मंडे दे कोइसे इंडिया लगा रास्ता खान आया 2 साल भितर दे अमेरिका लगा रास्ता निश्ना हो जाबो कोइना गवर्नमेंट बा रास्ता और हाईवे निमिदे बेसी पैसा लगायासे कोइसे ताई आरो जनाइसे सरकार ब्रा भाल रास्ता बनाई थाके खान काने लॉजिस्टिक्स दाम भी कमती कुरी दिएसे गडकरी ब्रा कोइसे कि इत्या 25 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 3000 किलोमीटर्स लगा पोर्ट कनेक्टिविटी हाईवे और रिलीजियस टूरिज्म सर्किट्स के कनेक्ट कुरिया ₹1 लाख करोड़ दाम लगा रास्ता बनायासे गडकरी जी, जो आपने सारे प्रोजेक्ट्स गिनवाए, आपको क्या लगता है ये पूरा ओवरऑल पिक्चर तस्वीर कब तक देश को सामने दिखेगी होती हुई? हालांकि अलग अलग टाइमलाइन है सबकी, लेकिन आप पूरा जैसे कंप्लीशन जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत आपने जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं ये बिल्कुल शक्ल बदल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। नहीं सर, आप बदल सकता नहीं, बदल गई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो आपने न्यूज़रील देखी है, असली पिक्चर तो शुरू होना बाकी है। जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो इतने तेजी से दौड़ रहे हैं कि निश्चित रूप से आप 2 साल के अंदर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा और वो बिहार और उत्तर प्रदेश का होगा। यानी मैं तो आपको थोड़ा वो लगता नहीं झिझक कि अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? कई पॉलिटिशियंस हमारे बोल के सर, मुझे इसलिए झिझक नहीं होती कि अमेरिका से कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्हें नाराजगी जताई। उन्होंने मुझे कहा आप गलत बोलते हो। मतलब क्या हुआ? मुझे लगा कुछ गलती हो गई। उन्होंने बोला आज का हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा है। आप कभी अमेरिका में आए हुए लोगों को जिन्होंने देश में अभी टूर किया होगा उनसे पूछो, वही आपको सही प्रतिक्रिया देंगे। विशेष रूप से जो 25 ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें से आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि मनाली से आप निकलेंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, 8 मिनट में आते। अटल टनल बनी, अटल टनल से बाहर आएंगे तो आप डायरेक्ट लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे, रोड बना रहे। लद्दाख लेह से आएंगे तो कारगिल के नीचे झोजिला टनल
आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, वो 75-80% काम पूरा हो गया। बाद में झेड़बोट टनल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, वो भी पूरी हुई। वहाँ से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 23 टनल पूरी हुई है, 4-5 टनल पर काम शुरू है। और जैसे हम जम्मू आते हैं उसके पहले ही कटरा के पास कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है, अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे से निकलकर हम सूरत तक जाएंगे। और आप ही साउथ में जाना होगा उत्तर भारत को, तो मुंबई, पूना, कोल्हापुर, सोलापुर से आगे जाते थे, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम। अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। अब सूरत से नया ग्रीन हाईवे बना रहे हैं हम, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, सब पूरे साउथ को जाने के लिए अब मुंबई, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं। 240 किलोमीटर दिल्ली से चेन्नई अंतर कम हुआ। अगर हमको बचपन में हम सुन रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सपना इसमें पूरा हो रहा है। अभी आपको दिल्ली में इसमें पूरा हो रहा है। अभी आपको दिल्ली में तो हम लोग इतने हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून अब 4-6 महीने में शुरू होगा 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 3.5-4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर हो गया वो जो 1 घंटे में हो गया, और यहाँ को मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। अब ऐसे इस प्रकार के हम करीब और 25 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये हाईवे पूरे हिंदुस्तान के तकदीर को बदल देंगे, नक्शे को बदल देंगे। हम पर्वतमाला परियोजना रोपवे केबल कार बना रहे हैं, 15 रोपवे 60 किलोमीटर की अब फाइनल स्टेज में है। उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे निर्माण कर रहे हैं। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे जो है वो करीब 3000 करोड़ का है। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे हमने अवार्ड कर दिया है 5000 करोड़ का। हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, 670 हमने रोड साइड एमिनिटीज़ बनाए, काफ़ी कुछ बन चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति ऐसी है कि हम इंटर मॉडल स्टेशन बना रहे हैं, तिरुपति में बना रहे हैं और कटरा में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो हमने करीब 4.5 करोड़ पेड़ 3 मीटर के लगाए, 80,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम 1.25 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं। उसमें से करीब 1 लाख करोड़ के रोड आने वाले दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। और निश्चित, अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने देखा है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, वो टनल भी शुरू हो गई है, ट्रायल भी शुरू हो गया। अब दिल्ली में कालिंदी कुंज वाला एक बड़ा रोड है जिसमें दिल्ली मथुरा एकदम शॉर्ट हो जाएगा। हम देहरादून वाले हाईवे को UR2 को जोड़ रहे हैं। UR2 से पानीपत से एयरपोर्ट 3.5 घंटे लगते हैं, आधा घंटे में जाएंगे। तो ये इतने बड़े प्रमाण पर दिल्ली में भी हम काम कर रहे हैं। हाईवेज छोटे और स्ट्रेचेस डेवलप कर रहे हैं। आपने बोला था कि हम 3 घंटे में 2 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। ऐसे कोई नए इन दी ऑफरिंग है जो आप नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जो देश को आप बताना चाहते हैं कि हाँ ये चीजें होने वाली हैं अभी आने वाले दिनों में? देखो, विशेष रूप से हम 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 3000 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी के हाईवे बना रहे हैं। और धार्मिक पर्यटन के लिए हमने 1 लाख करोड़ से हाईवे तो बन गए और 1 लाख करोड़ के बना रहे हैं। आपको लगा बुद्ध सर्किट, ये हमने 22,000 करोड़ का पूरा किया। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ये सब बौद्ध धर्मीय लोग जब आते हैं तो ये भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हो वहाँ सब जगह जाते हैं। तो अब सब जगह अच्छे रोड बनने से फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ गया है। दूसरा, 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसका ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया। अब लोग स्टेट गवर्नमेंट को रोकना पड़ा क्योंकि रोड अच्छा बना। अभी हम केदारनाथ के रोपवे बना रहे हैं, तो एक प्रकार से वो भी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। राम वन गमन मार्ग, राम जहाँ से वनवास के लिए गए थे वो हाईवे हम बना रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा है वो बना रहे हैं। कैलाश मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से उत्तराखंड से जा सकेंगे, वो रोड 85 to 90% पूरा हुआ है, वो हम बना रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने
पंढरपुर देऊ आळंदी को जोड़ने वाला 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग बना है, बेट द्वारका का बना है, पंढरपुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, हर जगह पर जितने धार्मिक पर्यटन के स्थल है जहाँ लोग जाते हैं, हमने वहाँ अच्छे रोड बनाए और ये मुझे करीब 2 लाख करोड़ की ये परियोजना हम पूरी कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस प्रा मेजर ड्रग रैकेट धुरिया उपorde एडिशनल डेप्टी कमिश्नर मनोज मीना ब्रा कुसे की ताकान ब्रा ड्रग तो रेलवे रूट प्रा पार्सल कुरिगिना पठाए. इतु गैंग आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रा ड्रग्स आनिगिना अलग अलग जगह दे सप्लाई दो कुरे. पुलिस प्रा इत्या तक 3 जून के अरेस्ट कुरिगिना से ताकान सोप तो पटना लगा से कुरिगिना जनाई दिसे. मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये कुरियर का इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, और कुरियर भी रेल रूट के द्वारा. जैसे अभी इनको अप्रीहेंड किया है, जो ये हमने गैंग पकड़ा है, इसमें ये लोग जो आंध्रा और उड़ीसा से ये लोग सोर्स करते थे और वाइजेक के थ्रू, ट्रेन रूट के थ्रू, TTDC के थ्रू ये लोग यहाँ पहुँचाते थे और फिर आगे की जो सप्लाई है इनकी वो होती थी. सर कितने लोगों को पकड़ा है, कितना रिकवरी हुई है? अभी हमने इनमें 3 लोगों को अप्रीहेंड किया है, 3 लोग अरेस्टेड हैं और टोटल जो हमारी रिकवरी है वो 52 kgs की है, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू है 15 to 20 lakhs. कहाँ से अरेस्टिंग हुई है सर? और तीनों ही एक्यूज हमने वाइजैक से पकड़े हैं, डिफरेंट डेट्स पे हैं. 28 मार्च को हमने जो धनंजय है उसको गिरफ्तार किया है. उसके बाद में 5 जून को जो अन्य अकम्पलिसेंस के 2 उनको हमने वाइजैक से अरेस्ट किया है और ये तीनों ही पटना के रहने वाले हैं. सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोरियर रहता था, तो पुलिस के लिए कितनी चुनौती रहती है, क्योंकि पता नहीं चल पाता कि आखिर किस सेगमेंट में ड्रग्स है, क्या है, तो इसके लिए ओबियसली ये क्योंकि इस जो स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है कुरियर्स का, उसको लेके हम ड्राइव चलाते हैं बार बार कि डिफरेंट जो कुरियर कंपनीज हैं या जो ट्रांसपोर्ट मोड हैं उन पर नज़र रखी जाए और रैंडम चेकिंग करी जाए, और हमारी टीम भी लगती है इसमें. तो हमें सफलता भी उस विषय में प्राप्त हुई है, इसलिए ये एप्रीहेंशन हुआ है और इतना बड़ा कैच हमने पकड़ा है. कोरियर कंपनी दिल्ली ला DCP नॉर्थ वेस्ट भिषम सिंह ब्रा जोआकाली जनाई से कि ताकान 154 बांग्लादेशी मानु इलीगल माइग्रेंट्स खानगे दूर से और ताकान के वापस पठाई दिस. ताई जनाई से जून 6 ते भी ताकान महेंद्र पार्क भारत नगर पुलिस स्टेशन एरिया दे 11 फैमिली के दूर से ताकान के भी पठाई दिया जनाई से. देखिए अभी तक जो ऑपरेशन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमने 154 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा है और उनको डिपोर्ट करवाया है. अभी तक रिसेंटली 6 जून को हमने 11 फैमिलीज जो इधर महेंद्र पार्क और भारत नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक सूचना के आधार पर उनको अप्रीहेंड किया, इंटरोगेट किया और पाया कि ये सब बांग्लादेशी हैं. और इनसे इनके टोटल 11 फैमिलीज में 66 इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनको अप्रीहेंड किया, डिपोर्ट करवाया और आज उनको शायद ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से करवाया जा रहा है. सर ये दिल्ली में कहाँ रह रहे थे और 11 फैमिलीज जो हैं 66 लोग, और क्या क्या काम करते थे ये, और इन्होंने क्या बताया किस तरह से और कितने टाइम पहले ये दिल्ली आए थे? इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये लगभग 1 साल से इंडिया में आए हुए थे और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ से ये बॉर्डर पार करके पोरस एरिया से इंडिया में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद फिर कहीं से भी जहाँ रेलवे स्टेशन होता है वहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आके काम करने लगते हैं. ये लोग हरियाणा में ईंट के भट्टे पे काम कर रहे थे और शायद वहाँ से अब इनको कोई प्रेशर हुआ होगा तो ये दिल्ली की तरफ आए और यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच में सस्पिशियस हालात में घूमते हुए लोगों को देख के हमारी टीम ने इनसे पूछताछ की और पता चला कि ये बांग्लादेशी हैं. फिर इनकी पूरी वेरिफिकेशन करवाई और जब एसरटेन हो गया कि ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं तो उसके बाद इनको डिपोर्ट करवाया गया. तो क्या सर एजेंट्स हैं जो वहाँ से भिजवाते हैं इनको, क्या उनकी भी धरपकड़ जारी है? इसके बारे में क्या? इसमें हमने एक केस रजिस्टर किया है जहांगीरपुरी थाने में, जिसमें ये पता चला था कि जो बांग्लादेशी इंडिया में लाए जाते हैं उनके पीछे एक व्यक्ति है जो एक पूरा ऑपरेट करता है, ग्रुप्स में लेकर आता है और यहाँ पे उनको जॉब भी दिलवाता है. तो उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश चल रही है. अभी उसका फ़ोन बंद है, मोस्ट लाइकली वो अभी बांग्लादेश में है. इंडिया में एंटर करेगा और जैसे ही कोई नंबर चलेगा सूचना के आधार पर हम उसको पकड़ेंगे. सर इनपुट क्या किस तरह से मिलता है, किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर?
देखिए, इसमें हमने बहुत सारी टीमें लगा रखी हैं और उसमें हमेशा वो टीमें प्रयास करती रहती हैं कि कहीं भी कॉलोनीज में या कहीं ऐसे लोकल इंटेलिजेंस से बातें पता चलती हैं कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो फिर उनकी जांच करते हैं, थोड़ा सर्विलेंस रखते हैं कुछ दिन, और जब ये सर्टेन हो जाता है कि हाँ ये हो सकते हैं, तब उनसे पूछताछ करते हैं। तो ये नॉर्मली लोकल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड काम होता है। पंजाब वुमेन कमिशन रा एकता ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस ऊपर 100 मोटो केस उठाइसे। कमिशन ला चीफ राज लली गिल प्रा कुसे इतु केस ते फिरोजपुर लगा माइके एकता के अलग अलग मानु प्रा 4-5 बार बिक्री कुरिसे। ताइलो बच्चा एकता भी ऐसे आगे दे इतु माइकी गे ताइ लगा हस्बैंड रा खेदाई दिसे इतु पिछे ताइ लगा कजन रा ताइगे परमजीत कौर क्वा माइकी एकता के बिकाइसे। कुन प्रा ताइगे आरबी कप्तान सिंह क्वा आगे बिकाइसे। इतु अमोय विक्टिम दो पुलावली पारिसे और ऑर्गेनाइजेशन एकता के कॉन्टैक्ट करिगना ताइगे बचाई लुइसे। देखो, ये जो 100 मोटर लिया है फिरोजपुर की लड़की, उसको 4-5 बार बेचा गया है। 35 ईयर ओल्ड लड़की है सिर्फ, और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया। उसको निकालने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। फिर वो लड़की अपने घर वालों के पास गाँव में वापस आ गई। उसके चचेरे भाई ने जाके एक और लेडी है जिसका नाम परमजीत कौर था, उसको बेच दिया। अब परमजीत कौर ने अपने घर में काम करवाती थी, बकरियाँ चराती थी, वो उसका जिस्मानी शोषण भी करवाती रही है, वो पैसे कमाती रही है। और रात को जब वो वापस मतलब उसको रखती थी कमरे के अंदर, वो बहुत ही चेनों के साथ बांध के रखती थी ताकि ये लड़की रात को भाग न जाए कहीं भी। फिर उसने एक और बंदे को जाके बेचा जिसका नाम था कप्तान सिंह। 4 बारी बेची गई ये लड़की। और उसके बाद में जब कप्तान सिंह के पास रही, फिर वो बेचने के लिए कहीं और उसको लेकर आया। तब ये लड़की को एक छोटा सा मौका मिला और वो भागकर किसी से के पास आई कि मेरे को बचाइए, मेरे इस तरह से मेरी बुरी हालत है। इसको बचाने के लिए जहाँ पे आई, फिर उस किसी संस्था को पता चला, जो इंटरनेशनल मेरा ख्याल है कि पंथ दल है, उनको पता चला। वो जाके वो लड़की को जाके लेकर आए वहाँ से। मेरा तो इतना ज़्यादा दुख है इस खबर को लेकर कि हमारे नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। पंजाब ऐसे स्टेट के अंदर होता रहा जहाँ की एक एक खबर, जहाँ पे ब्लॉक इंचार्जेस होते हैं, प्रशासन है, पुलिस है, उनको पता होता है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, लेकिन किसी को इसकी कोई खबर नहीं लगी। इस औरत को 4-5 बार लोगों ने बेचा। दर्दनाक इसकी ज़िंदगी भर रही है। हम तो शुक्राना करते हैं कि उस संस्था का जिन्होंने इसको बचाया कम से कम। अब जो है FIR हुई है, जो परमजीत कौर है लेडी, उसके नाम पे और कप्तान सिंह के नाम पे। मैंने आज SSP साहब को लिखा है, सुमोटो लिया है कि ये जो है कार्रवाई उन पे शुरू होनी चाहिए जो पति के ऊपर जिसने घर से निकाला, उस भाई के ऊपर जिसने पहले बेचा इसको। मैं कहूँ उसे 7,000 में बेचा सबसे पहले। तो ये जो है ना, ये समाज की, मुझे तो ये लगता है कि हमने सबने मिलकर, पूरे समाज ने इस लड़की को फेल किया है। ये अकेला एक का कसूर नहीं निकला, घर वालों का। कहते हैं ना कि तो खून ही पानी हो गया। तो जब भी कोई लड़की होती है, उसको कोई मुश्किल पड़ती है, वो माँ बाप के पास आती है, भाई खड़े होते हैं। यहाँ तो भाइयों ने ही बेच डाला उसको। तो ये जो है ना, मुझे लगता है जैसे शुरू में हम स्कूल में पढ़ते होते थे, एक सब्जेक्ट होता था जिसको कहते हैं मॉरल साइंस। उस मॉरल साइंस में सिखाया जाता था लव दाई नेबर। गाँवों में क्या होता था, अगर किसी के घर में ज़रा सा कुछ हो जाए तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता था उसको कोई भी सहायता करने के लिए। लड़की की शादी होती थी तो पूरा गांव इकट्ठा होकर मदद करता था फैमिली की। इसमें क्या हुआ, एक गांव में इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, एक लड़की को राजस्थान तक ले जाके वहां पर बेचा गया, लेकिन गांव का मुखिया, गांव का प्रशासन या पुलिस, किसी को कोई खबर ही नहीं है। या हम लोग इतने ज्यादा खुदगर्ज हो गए हैं कि हम अपना देखें, अपना घर देखें, साथ में क्या हो रहा है उसकी किसी को परवाह नहीं है। मेरा ख्याल जो समाज का स्तर है ना, ये बहुत गिरता जा रहा है। एज ए मॉरल जो होती है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो ये तो था से इतला बोलने का नहीं, और अलग अलग खबर का निशाई देखिए ऑन बिल TV।